the channel BioCafe. Myself Mahesh Mahajan. Today we are going to discuss about GPCR and G proteins, which is a kind of an important topic in terms of your cell signaling point of view also. And you can find that by learning this particular topic, you can understand that how various signaling pathways are occurring in our body, and due to which you can find a great range of functioning is there. ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम सिर्फ जीपीसीआर और जी प्रोटीन के बारे में बात करेंगे. एंड इन आवर अपकमिंग वीडियोस वी आर गोइंग टू डील अबाउट द signaling mechanisms or the pathways which are associated with these two particular things, that is your GPCR as well as G protein. ठीक है, and this topic is going to be useful for CSIR net and Git Life Sciences because in the attempts, various attempts, you are going to find the questions are coming from this particular topic of GPCR. ये एक छोटा topic नहीं है, it is a kind of vast topic where you have to understand the basic concepts first, then we will be shifting ourselves towards the further detailed version of this particular topic, because here in this topic we are going to deal with the basics, but this topic is not at all sufficient क्योंकि इसके अंदर आगे जो upcoming videos आएंगे उनकी जो signaling mechanisms है वो बहुत important है in terms of the knowledge also as well as in terms of the exam point of view also, right? So here today we are going to deal about GPCR as well as G protein. तो चलिए start करते हैं. So first we should understand what is the structure of a G protein receptor, that is GPCR, that is G protein coupled receptor. अब GPCR का full form है G protein coupled receptor and it is also sometimes called as G protein linked receptor. So as you can see in this figure that there are 7 transmembrane helices, right? और हम ऐसे कह सकते हैं भाई there are 7 membrane spanning domains which are there, they are present in the particular structure of your G protein coupled receptor. तो ये एक तरह के हमारे ऐसे receptors है जहाँ पर आप देखोगे कि भाई there are 7 transmembrane helices or I can say 7 membrane spanning domains are present, therefore they are called as heptahelical receptor or I can say 7TM receptor. heptahelical का मतलब है भाई 7 helix जो है transmembrane helices जो है वो पास ऑन कर रहे हैं या फिर स्पैन कर रहे हैं मेम्ब्रेन को, therefore the name is given as heptahelical. And in the same way when I am concerned with this the second name, that is 7TM receptor, that is 7 transmembrane protein receptor. क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे 7 transmembrane helices जो है वो प्रेजेंट है, तो 7 transmembrane helices receptor. फाइन, तो ये भी आपको ध्यान रख लेना है. एंड एज यू कैन सी दैट दिस रिसेप्टर्स आर बिलोंगिंग टू अ लार्ज प्रोटीन फैमिली. अब जो हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसका नाम जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर क्यों है? बिकॉज देयर इज अ काइंड ऑफ एसोसिएशन ऑफ द जी प्रोटीन, और ऐसा हम कह सकते हैं कि भाई जी प्रोटीन जो है इसके साथ लिंक्ड होता है या कपल्ड होता है इस रिसेप्टर के साथ फॉर द पर्पस ऑफ द signaling mechanism. Therefore the name is given as GPCR, that is G protein coupled receptor. ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि in figure you can see that there are cysteine rich residues are present. जहाँ पे मैंने C लिखा है वहाँ से आप देख सकते हो. So this cysteine rich residues wherever they are present, they are there for the purpose of stabilization of this receptor in the मेम्ब्रेन. तो मेम्ब्रेन के अंदर इसकी स्टेबिलिटी कौन मेंटेन करके रखता है? ये आपके सिस्टीन रेसिड्यूज जो है वो मेंटेन करके रखता है. और यहाँ पर आप देख रहे हो कि 2 सिस्टीन रेसिड्यूज जो है एक दूसरे के साथ लिंक हो रहे हैं एंड दे लिंकेज विच इज देयर, इट इज द डाइसल्फाइड लिंकेज. ठीक है, तो आई होप कि इतना आपको पता चल गया होगा. एंड बेसिकली हम अगर इस रिसेप्टर की बात करें तो इट इज़ अ काइंड ऑफ इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन रिसेप्टर. तो इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन रिसेप्टर इसीलिए बिकॉज ये मेम्ब्रेन के अंदर एसोसिएटेड रहता है या एंकर्ड रहता है या हम ऐसे कह सकते हैं इंटीग्रेटेड रहता है. देयरफॉर इट इज़ अ काइंड ऑफ इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन रिसेप्टर. क्यों इंटीग्रल भी? क्योंकि आप देख सकते हो कि इसके जो हेलाइसिस है ट्रांसमेम्ब्रेन हेलाइसिस वो मेम्ब्रेन को स्पान कर रहे हैं 7 टाइम. And the last point for the introduction of this receptor is that it is a serpentine like receptor, या फिर हम serpentine receptor भी कह सकते हैं because a snake like appearance is depicted when you are concerned with this particular receptor. चलो फिर अब बात कर लेते हैं कि भाई ये रिसेप्टर का काम क्या है. रिसेप्टर का काम होता है एज अ ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर के तरह. ठीक है,
गुआनिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर यानी कि GEF, जिसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं, इसकी जो एक्टिविटी होती है वो इसी तरह की होती है कि भाई इट इज मेकिंग द एक्सचेंज ऑफ द गुआनिन न्यूक्लियोटाइड, राइट। तो ये एक्सचेंज करवाता है, तो इसी हिसाब से इसकी जो एक्टिविटी है वो देखी जा रही है। देयरफॉर इट इज एक्टिंग बेसिकली एज GEF, दैट इज गुआनिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर। हम आगे बात करेंगे कि भाई ये कैसे काम करता है जब हम जी प्रोटीन को स्टडी करेंगे तब। चलो फिर अगर इफ आई वांट टू डिस्क्राइब द सिग्नलिंग फैक्टर्स विच आर एसोसिएटेड विद दिस पर्टिकुलर रिसेप्टर, तो सिग्नलिंग फैक्टर्स या फिर मैं ऐसे कह सकता हूँ कि लाइगेंड कौन से है वो मैं आपको बता देता हूँ। देयर आर फैक्टर्स विच आर एसोसिएटेड विद स्मेल, लाइट, टेस्ट, देन न्यूरोपेप्टाइड, न्यूरोट्रांसमीटर्स, then your protein hormones, or I can say peptide hormones, then your epinephrine or adrenaline, and there are certain other factors which are associated with some of the diseases जैसे कि कोलेरा एंड अदर स्टफ। ठीक है, तो आपको जो इन सब के बारे में जो भी है फैक्टर्स अभी मैंने बताया है वो अपकमिंग वीडियोस में वन बाय वन आपको चीज़ें पता चलेगी कि अलग अलग फैक्टर जब आते हैं या एज लाइगेंड जब आते हैं तो ये रिसेप्टर का काम क्या है, उनको सेंस करना है और उनको डिटेक्ट करना है। और ये सिग्नलिंग फैक्टर आपको भी पता है कि दे आर प्रेजेंट इन द आउटसाइड एनवायरनमेंट ऑफ द सेल, कि सेल के आउटसाइड एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होता है। तो जैसे ही कोई भी एक फैक्टर इस हिसाब से आता है तो दे विल इनिशिएट अ डिफरेंट कास्केड ऑफ signaling, and that particular cascade we are going to discuss in our upcoming videos one by one, क्योंकि ये एक ऐसा वास्ट टॉपिक है कि एक ही वीडियो में सारे टॉपिक्स यानी कि 5 या 6 सिग्नलिंग पाथवेज जो इसमें आ रहे हैं इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कवर। फर्स्ट वी विल हैव द बेसिक्स, तो इसके वजह से क्या होगा कि हमारी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, रूट बिल्डिंग हो जाएगी, सो दैट वी आर एबल टू क्लियर आर कंसेप्ट्स रिलेटेड टू द फर्दर टॉपिक्स, एंड इट विल बी यूजफुल फॉर द एग्जामिनेशन ऑल्सो एज वेल एज क्लियरिंग द कंसेप्ट्स रिलेटेड टू द लाइफ साइंसेज ऑल्सो और सेल सिग्नलिंग ऑल्सो। चलो बात कर लेते हैं कि ये रिसेप्टर के जितने भी मैंने फैक्टर्स बताए हैं उसके हिसाब से यू आर गोइंग टू सी द डिफरेंट सिग्नलिंग मैकेनिज्म्स आर इनिशिएटेड और दे आर एसोसिएटेड विद डिफरेंट सिग्नलिंग मैकेनिज्म्स। ठीक है, तो you have to understand this, and from this figure you can also find that the N terminal domain which is there, it is present outside the cell, and the C terminal domain is present inside the cell. तो जैसे ही कोई भी सिग्नलिंग फैक्टर यानी कि लाइगेंड आता है और इसके ऊपर बाइंड कर जाता है, राइट, तो आप देखोगे कि उसने उस लाइगेंड को डिटेक्ट किया एंड इट इज गोइंग नाउ टू इनिशिएट द सिग्नलिंग मैकेनिज्म। तो अब ये एक्टिवेट कैसे करता है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये एक्ट करता है गुआनिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर की तरह, इसकी एक्टिविटी देखी जाती है। अब वो कैसे होती है हम हमारे जब जी प्रोटीन अभी स्टडी करने वाले हैं, just now we are going to deal with this particular activity। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। Here we are now going to deal about the structure of G protein and its activation। अब G protein हम कर रहे हैं भाई, तो G protein होता क्या है? G protein refers to what? Guanine nucleotide binding protein। Guanine nucleotide binding protein is इक्वल टू योर जी प्रोटीन। अब जी प्रोटीन को हम जब गुआनिन न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग प्रोटीन बोल रहे हैं तो वो क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज इन दिस स्ट्रक्चर ऑफ द इनएक्टिव फॉर्म ऑफ जी प्रोटीन एज यू कैन फाइंड दैट देयर इज रिटर्न कि जीडीपी है और जीटीपी है, जो कि आपको देखने मिल रहा होगा, राइट। तो ये जो जीडीपी और ये जो जीटीपी है, करेक्ट, तो ये क्या है? ये गुआनिन न्यूक्लियोटाइड ही है एक तरह के, करेक्ट। तो इसी हिसाब से आप देख सकते हो कि जीटीपी भी यहाँ पे आके बाइंड होने वाला है और जीडीपी भी बाइंड होने वाला है, इसीलिए नाम दे दिया गया है गुआनिन न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग प्रोटीन। आई होप कि आपको ये चीज़ें जो है वो क्लियर हो गई होगी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारे जी प्रोटीन के कंसेप्ट को लेकर। सो जी प्रोटीन इज वंस अगेन बिलोंगिंग टू द वाइड और आई कैन से अ ह्यूज फैमिली ऑफ प्रोटीन्स, राइट। एंड ये जी प्रोटीन की दो अलग अलग फैमिलीज होती है, एक स्मॉल जी प्रोटीन्स होते हैं और एक लार्ज जी प्रोटीन्स होते हैं। स्मॉल जी प्रोटीन्स जो होते हैं दे आर प्रेजेंट इन द मोनोमेरिक फॉर्म, बट लार्ज जी प्रोटीन्स जो है दे आर प्रेजेंट इन पॉलीमर फॉर्म। पॉलीमर इन द सेंस कि मोनोमर के फॉर्म में वो नहीं होते हैं, मोर देन 2 मोनोमर्स और मोर देन 3 मोनोमर्स इस हिसाब से। बट बेसिकली हमारे पास जो लार्ज ग्रुप ऑफ जी प्रोटीन्स जो है वो ट्राइमेरिक होते हैं। ट्राइमेरिक यानी कि मेड अप ऑफ 3 यूनिट्स और 3 मोनोमर्स इस तरह से,
राइट। तो 3 यूनिट से ये बने हुए हैं, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज ट्राइमेरिक प्रोटीन एंड दैट टू स्पेसिफिकली हेट्रोट्राइमेरिक प्रोटीन। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट डिफरेंट, तो डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं जी प्रोटीन में, देयरफॉर, और वो कितने प्रेजेंट होते हैं, 3 प्रेजेंट होते हैं, इसलिए द नेम इज गिवन एज हेट्रोट्राइमेरिक प्रोटीन। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं कि कौन से 3 अलग अलग सब यूनिट जो है इस प्रोटीन को बना रहे हैं वो कौन से हैं, वो हम देख लेते हैं। सो फर्स्ट इज योर जी अल्फा सब यूनिट, सेकेंड इज योर जी बीटा सब यूनिट एंड थर्ड इज योर जी गामा सब यूनिट। अब आपको जो कंसेप्ट है क्लियर हो गया होगा मेरे इस कहने से कि देयर आर 3 डिफरेंट सब यूनिट्स। फर्स्ट इज योर जी अल्फा जो कि बड़ा होता है, एंड जी बीटा एंड जी गामा विच आर देयर, दे आर द स्मॉलर सब यूनिट्स। फाइन। अब आप देखोगे स्ट्रक्चर में आपको दिख रहा है कि भाई जी अल्फा के पास एक तरह की ऐसी साइट होती है जहां पर आप देखोगे कि गुआनिन न्यूक्लियोटाइड इन द सेंस कि जीडीपी और जीटीपी आके बाइंड कर जा सकते हैं, राइट। सो एक ऐसी साइट भी वहां पर प्रेजेंट होती है। चलो, now these are the heterotrimeric protein and they are made up of 3 subunits called as alpha, beta and gamma। ठीक है, अब अल्फा जो है सब यूनिट उसके भी बहुत सारे वेरियस फॉर्म्स देखे गए हैं, तो देर आर ऑलमोस्ट अराउंड 21 जी अल्फा सब यूनिट्स। देन जी बीटा के भी देर आर अराउंड 6 सब यूनिट्स अलग अलग, एंड जी गामा के भी हम देखेंगे कि देर आर 12 different subunits of G gamma, you have different types of G gamma। तो 21 G अल्फा के हैं, बीटा के जो है that is your 6 एंड G गामा के जो है that is your 21। तो इस तरह से अलग अलग इसमें भी वैरायटी देखी गई है एंड अकॉर्डिंगली दे आर हैविंग देयर ओन फंक्शनिंग्स। ठीक है, तो हम एक एक करके हमारे जो अपकमिंग वीडियो है, जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया हुआ है, तो देयर वी आर गोइंग टू डील विद दोस पर्टिकुलर डिफरेंट फॉर्म्स। ठीक है, बट यहाँ पर हम बेसिक जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में डील कर रहे हैं। नाउ अब आपको यहाँ से एक चीज़ पता चल रही है कि जब हमारा जीडीपी जो है वो अगर स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है, यहाँ पर बाउंड फॉर्म में है अगर जी अल्फा सब यूनिट के साथ, तो हियर इट इज़ रिटन दैट इट इज़ द इनएक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ जी प्रोटीन। तो जब जीडीपी बाउंड होता है जी अल्फा सब यूनिट के साथ तो वो इनएक्टिव फॉर्म कहलाता है। ठीक है, तो इतना आपको पहले पता होना चाहिए। तो what is the thing that is your G protein is present when in the inactive form। तो वो inactive form में कब होता है, जब उसके साथ GDP जो है वो बाउंड होता है। नाउ अब ये एक्टिव कब होता है उसके बारे में हम जान लेते हैं। नाउ ये एक्टिव तब होगा जब GDP जो है वो रिप्लेस हो जाएगा GTP से। किससे रिप्लेस हो जाएगा, जीटीपी से। आपने देखा होगा कि भाई देखो अब फर्स्ट वाले फिगर में आप देख सकते थे कि भाई जीडीपी बाउंड था जी अल्फा सब यूनिट के साथ, ठीक है, जीटीपी नहीं था। बट जैसे ही जीटीपी आ गया जीडीपी के जगह पर, अब ये स्ट्रक्चर कैसा हो गया, ये एक्टिवेटेड स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, अब इसमें एक और चेंज आप देख सकते हो कि भाई जी गामा और जी बीटा सब यूनिट जो है वो डिसोशिएट हो चुके हैं जी अल्फा से, जो कि आपको देखने मिल रहा है आराम से इस फिगर से, राइट। सो हियर यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट जी बीटा एज वेल एज द जी gamma subunits which are there, they are getting dissociated, and only G alpha unit which is there, it is there along with your GTP when it is present in the activated form। ठीक है, तो इसी को एक्टिवेटेड फॉर्म कहा जाता है हमारे जी प्रोटीन का। अब ये एक्टिवेटेड फॉर्म अगर कहा जा रहा है तो ये जीटीपी के मदद से कहा जा रहा है। अब ये जीटीपी इसके ऊपर आके बैठा कैसे, बिकॉज ऑफ जीईएफ। अब जीईएफ क्या है, गुआनिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर। अब ये एक्टिविटी किसने शो की, आपके जीपीसीआर ने शो की, दैट इज योर जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर ने शो की थी ये एक्टिविटी। जैसे ही उसको सिग्नल मिल गया था तो उस भाई ने क्या किया, जी प्रोटीन का एक्टिवेशन करवाया। अब जी प्रोटीन का एक्टिवेशन कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पे गुआनिन न्यूक्लियोटाइड जो है वो एक्सचेंज हो गया, यानी कि जीडीपी जो था इनएक्टिव स्टेट में वो रिप्लेस हो गया है, सब्सटीट्यूट हो गया है जीटीपी से, राइट। और ये एक्टिविटी कैसी है, इट इज गुआनिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर एक्टिविटी विच इज शोन ड्यू टू द एक्टिवेशन और विच इज शोन ड्यू टू द इनिशिएशन ऑफ द सिग्नल विथ द हेल्प ऑफ द रिसेप्टर। तो रिसेप्टर के मदद से ये चीज जो है वो देखी गई। अब रिसेप्टर कौन सा है भाई, हमारा जीपीसीआर, करेक्ट। सो दिस इज व्हाट एक्चुअली यू हैव टू अंडरस्टैंड। नाउ अब ये जो एक बार आपका प्रोटीन जब एक्टिवेट हो जाता है, करेक्ट, तो ये आगे फर्दर सिग्नलिंग कास्केट जो है वो इनिशिएट करता है, यानी कि ये इंटर्न जो मेम्ब्रेन एंकर्ड ये होते हैं एंजाइम्स होते हैं,
या फिर मेम्ब्रेन एसोसिएटेड एंजाइम्स होते हैं उनको एक्टिवेट करवाएगा, फिर वो एंजाइम्स फर्दर सिग्नलिंग कास्केड में जाएंगे और फिर इस तरह से जो सिग्नलिंग मैकेनिज्म है या सिग्नलिंग कास्केड जो है वो चलता रहता है एंड अल्टीमेटली एट लास्ट यू आर गोइंग टू सी दैट कि सेलुलर रिस्पॉन्स जो है वो देखने मिलेगा। अब ये कैसे होता है वो हमारे अपकमिंग वीडियोज़ में जान लेंगे विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम्स एंड डिफरेंट डिफरेंट मैकेनिज्म्स, एज वेल एज हम ऐसे कह सकते हैं कि भाई ये जो जी अल्फा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एंड दिस जी अल्फा विच इज़ देयर वो उसके भी अलग अलग फॉर्म्स है, जैसे कि मैंने बताए थे कि देर आर ऑलमोस्ट 21 डिफरेंट फॉर्म्स। हम एक एक के बारे में नहीं इतना ज़्यादा नहीं देखेंगे, बट हमारी जो मेजर है यानी कि जी अल्फा स्टिमुलेटरी यानी कि जो स्टिमुलेशन देगा, राइट, सो जी एस अल्फा है, देन जी आई अल्फा, जी आई यानी कि इनहिबिटरी अल्फा, राइट, सो जी आई अल्फा, देन जी टी वाला भी अलग होता है, दैट इज ट्रांसड्यूसर की तरह काम करता है, तो दैट इज अगेन अ डिफरेंट वन। देन आपका आ जाता है जी ऑल्फ, ओ एल एफ, जो कि स्मेल के लिए है, राइट, तो वो एक अलग चीज आ जाती है आपकी। देन जी क्यू जो कि कैल्शियम पाथवे यानी कि IP3 और डैक पाथवे में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो हम आगे देखने वाले हैं, राइट। तो इसी तरह के अलग अलग जो जी अल्फा सब यूनिट्स है वो अलग अलग सिग्नलिंग कास्केड जो है वो कैरी आउट करेंगे। अब वो अलग अलग इसलिए कैरी आउट करें क्योंकि भाई हमारा सिग्नल भी जो है वो भी डिफरेंट है, राइट। अगर मान लो कि भाई विजन से रिलेटेड सिग्नल आया और मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड पाथवे कैरी आउट हो गया तो भाई वो चीज़ नहीं चलती ना, राइट। तो इसी हिसाब से जी प्रोटीन के जो ये अल्फा सब यूनिट है दे आर ऑल्सो हैविंग देयर डिफरेंट फॉर्म्स एज वेल एज दे आर हैविंग देयर डिफरेंट मोड्स ऑफ एक्शन, राइट। यहाँ पर आपको इतनी बात ध्यान रख लेनी है। अब हम बात कर लेते हैं जी अल्फा के एक्टिविटी की। तो चलो एक बार सिग्नलिंग एक्टिविटी जो है वो एक्टिवेट हो गई है, अब रोक भी तो लगानी पड़ेगी, राइट। तो जीटी जो जो हमारा ये जी अल्फा है उसके पास एक एक्टिविटी होती है जिसको हम बोलते हैं जीटीपेज एक्टिविटी, राइट, जीटीपीएज एक्टिविटी बोलते हैं। एंड दैट जीटीपीएज एक्टिविटी व्हाट इज द रोल ऑफ दिस एक्टिविटी। अब ये क्या करेगा, जो जीटीपी था, राइट, आपका जो बाउंड फॉर्म में है आप देख सकते हो यहाँ पर एक्टिवेटेड फॉर्म में, तो जैसे सिग्नलिंग कास्केड एक्टिवेट हो जाता है और आपको पता चल गया है भाई जी प्रोटीन को पता चल गया कि भाई सिग्नलिंग कास्केड एक्टिवेट हो चुका है तो उसको उसके इनएक्टिव फॉर्म में आना है, तो जीटीपीएस के मदद से अब क्या होगा, जीटीपी का हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। अब जीटीपी का जैसे ही हाइड्रोलिसिस होगा तो क्या आ जाएगा, वहां पे जीडीपी आ जाएगा, यस, राइट। तो इट इज व्हाट इज द रोल ऑफ जीटीपीएस। जीटीपीएस का रोल यही है कि भाई हाइड्रोलिसिस कैरी आउट करवाता है। वो किसका हाइड्रोलिसिस कैरी आउट करवाता है, जीटीपी का, राइट। और जीटीपी से क्या बनेगा, जीडीपी, ठीक है। तो जीडीपी जब बन जाएगा तो अपने आप बंदा जो है आपका जी प्रोटीन वो इनएक्टिव स्टेट में आ जाएगा। सो दैट इज व्हाट एक्चुअली इज द कंसेप्ट बिहाइंड द एक्टिवेशन एंड इनएक्टिवेशन ऑफ योर जी प्रोटीन। एंड आई होप कि अभी आपको सारी चीजें जो वो क्लियर हो गई होगी। तो आपको यहाँ पर जी प्रोटीन का क्या रोल दिख रहा है, एक तरह के मॉलिक्यूलर स्विचेस है, ये एक तरह के मॉलिक्यूलर स्विचेस है जो कि सिग्नल को ऑन ऑफ करवाएंगे, यानी कि सिग्नलिंग एक्टिविटी को ऑन ऑफ करवाएंगे, right, due to which you can see the entire signaling cascade is getting on or off। तो एक तरह के हमारे मॉलिक्यूलर स्विचेस है, अगर ये एक्टिव हो गए तो हमारा सिग्नलिंग कास्केड जो है वो भी एक्टिव हो जाएगा, अगर ये ऑफ है तो nothing can be done, that is signaling is inhibited, fine। So here you have to understand this is the basic related to your GPCR as well as your G protein। अब जो GPCR है हम एक बार just एक hint ले लेते हैं, it is your 7 transmembrane helices receptor or it is a heptahelical receptor, and you can find that this particular receptor will detect the signal outside the cell environment, and this particular receptor is going to receive that signal and will initiate the signaling mechanism by activating the G protein जो कि इसके साथ coupled होता है, right। So when once the G protein is activated with the GEF activity of the receptor, यानी कि GEF activity कौन शो करने वाला, आपका रिसेप्टर शो करने वाला है। and what is GEF? GEF is your guanine nucleotide exchange factor, right। तो इसके मदद से आप देखोगे कि भाई GEF एक्टिविटी जो रिसेप्टर ने शो कर दी है, now your G protein is going to be activated। अब G protein इनएक्टिव फॉर्म में कैसे रहता है, जब उसके पास GDP बाउंड होगा तब, ठीक है। अब जैसे ही ये रिसेप्टर ये एक्टिविटी शो कर देता है GEF की, तो आप देखोगे कि भाई GTP जो है वो आके बैठ जाता है GDP के जगह पर, या आप देख सकते हो फिगर में भी, करेक्ट। सो दिस इज व्हाट एक्चुअली इज देयर, एंड यू कैन फाइंड कि जी बीटा और जी गामा सब यूनिट जो है एक्टिवेटेड फॉर्म में डिसोशिएट हो जाता है, बट जैसे ही सिग्नलिंग कास्केड इनिशिएट हो जाता है, सिग्नलिंग मैकेनिज्म चल लेता है, तो जी अल्फा का जो
जीटीपीएस एक्टिविटी है वो एक्टिव हो जाती है और जीटीपी का हाइड्रोलिसिस हो जाता है और वो जीडीपी में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे ही जीडीपी में कन्वर्ट हो जाता है, जीडीपी आ जाता है, तो आप देखोगे कि भाई बीटा और गामा सब यूनिट जो है वो फिर से एसोसिएट हो जाते हैं, वापस रीएसोसिएट हो जाता है। सो दैट इज व्हाट एक्चुअली इज साइमल्टेनियसली और आई कैन से ऑल्टरनेटली रनिंग द प्रोसेस ऑफ एक्टिवेशन एंड इनएक्टिवेशन ऑफ जी प्रोटीन व्हेन अ रेगुलर और आई कैन से व्हेन अ नॉर्मल सिग्नलिंग कास्केड इज बीइंग देयर प्रोसेस्ड। ठीक है, तो दिस इज व्हाट एक्चुअली इज द थिंग। नाउ लेट अस सॉल्व वन क्वेश्चन विच वॉज देयर फ्रॉम योर CSIR नेट। यहाँ पर उन्होंने बात यही कही है कि जो हमने पढ़ी है तो ये एक तरह की समरी भी आ जाएगी और एक तरह का आपका क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। तो इसीलिए इंटेंशनली मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिया हुआ है कि पूरा हमने जो पढ़ा है वो एक पैराग्राफ में इन्होंने समराइज कर दिया है, राइट। कि GPCR होते हैं वो एक तरह के रिसेप्टर्स होते हैं जी प्रोटीन के लिए, और जी प्रोटीन के 3 सब यूनिट होते हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा। और इन लोगों ने ये बताया कि जैसे ही सिग्नल आता है GPCR के ऊपर बैठता है तो GPCR उसे सेंस करके जी प्रोटीन को एक्टिव करवाता है और GTP का इंटर कन्वर्जन जो है वो करवाता है। तो यहाँ पर इतनी सारी जो चीज़ें हैं वो हमारे एक समरी पॉइंट ऑफ व्यू में आप यहाँ पर आ गई है। बट यहाँ पर एट लास्ट इफ यू कैन रीड दिस लाइन कि व्हाट इज द रोल ऑफ जी अल्फा सब यूनिट, तो जी अल्फा सब यूनिट का रोल क्या है वो पूछा गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज योर GTPase, then second is your GDP kinase, third is your cyclic GMP specific phosphodiesterase and cyclic which is there AMP specific phosphodiesterate। तो अभी हम देख सकते हैं कि हमने जो अभी कंसेप्ट पढ़ा है तो उसमें हमने पता लगा लिया कि भाई जी अल्फा की जो एक्टिविटी है दैट इज़ योर GTPase एक्टिविटी ओनली। ठीक है, बाकी ये सब चीज़ें तो हमने अभी तक देखी ही नहीं है। एंड वन मोर थिंग, जो साइक्लिक GMP एंड साइक्लिक AMP की बातें चल रही है, स्पेसिफिक फोस्फोडाइएस्ट्रेज एंड ऑल, वो हमारे सिग्नलिंग कास्केड में आती है, राइट। ये भी मैं आपको अभी पहले बता देता हूँ ताकि अभी आपको ऐसा लगे कि भाई कि ये क्यों नहीं हो सकता है, राइट। बिकॉज ये एक बार आपका जी प्रोटीन एक्टिवेट होता है उसके बाद ये सारी जो चीज़ें हैं वो आगे आती है। तो जी प्रोटीन एक्टिवेट हो रहा है तो जी अल्फा का जो सब यूनिट है दैट इज योर GTPase एक्टिविटी इट इज शोइंग। ठीक है, तो इतना अभी आपके लिए आपको जो है वो याद रखना है। आई होप कि अभी आपको सारी चीज़ें जो है वो समझ में आ गई होगी एंड इफ यू आर हैविंग नो confusion I hope, right? So if you had liked this video then please hit the like button, do share it with your friends and also subscribe to my channel, and if you are having any sort of doubt then you can ask me in the comment box, right? So keep sharing, keep watching, keep liking. Thank you so much.